So we thankful to KK Imitations Jewelries, proprietor KK Jain, Kishore Jain, who gave us the best wishes and the best compliments for a very good played a challenge President Cup 2000 with in a very good atmosphere, a very good arrangement, a very good telecast, everybody doing hard work here, and the telecast and the challenge President Cup is going for a historical cup in Bhiwandi. तो सचिन 11 वन द टॉस। मैं मालूमात के लिए बताता चलूं कि पिछले मैच को 1.5 घंटा बराबर लग गया था। थैंक यू अंपायर्स। तो भाव बॉल्स, फर्स्ट डिलीवरी, वेरी वेल प्लाइड, and they go for one. These two teams, passing taken two. The objection from the cover fielder. So 2 for no wicket. Sandeep on 2. Sandeep Naik on 2, and Sandeep Patil yet open his account. And Jai Bajrang 2 for no wicket. Here turn Bhau. Goes to Naik, who try to going for a square cut, wide signal from umpire Datar. So 1 more to total now is 3 for no wicket. First over in progress, and the very tough match between top two teams, Sachin 11 versus Jai Bajrang Karoli. This time goes his back foot, open the face of the bat, and playing a square of the offside for a single. So 1 more to total now, 4 for no wicket. Naik on 3, and now Sandeep Patil on his strike. Harish, you know about this Sandeep Patil, the India's most fine batsman. He is the member of World Cup who hit Bob Willis' 6th boundary in the semi-final, I think, against England in 1983. How goes to Patil, who comes forward. Ball is travelling edge of the bat to third man, and they go for one. So Sandeep Patil on 1, Sandeep Naik on 3, and Jai Bajrang losing a toss, batting first here, 5 for no wicket. First over. And here turn Bhau. Goes to Naik, who comes forward, very stylishly push, a classic push from Naik, and they go for one. So 6 for no wicket. Runs coming rapidly in this over. On your TV monitor, the Pappu Chaudhary with Shrikar Polyester proprietor Ganpat Bhai, the Ranjit Bhai and Ranjit's uncle is there on your TV monitor, and Vilas R. This time a very fine glance indeed. But there is the fielder, in comes throw, and batsman go for one. So fine timing. Is unhappy slightly, Sandeep Patil. He tried to play very fine indeed, but ball is gone slightly a squarer. So 1 more to total now. It's 7 for no wicket, Jai Bajrang. This time I improvise the stroke. We wait from pass signal, take up for one. Once more ball is running down same direction. So there is a no signal from Datar. 1 off bat. So Naik on 4, Patil on 2, 2 Sandeep open the innings from Jai Bajrang, and end of the first over, 8 for no wicket. There is a electronic moving display, and under the electronic moving display there is a manual scoreboard. Paresh Bhanushali is there. There's the logo
of Shrikar, a moving logo. This wonderful graphic telecast to you made by Bhiwandi.com. If you have an internet service, if you want the detail of this tournament, the graphics of this tournament, the clues of this tournament, open your website www.bhiwandi.com. This time he tried to improvise his stroke. Mahesh bowling on the leg stump. Harish, Jai Bajrang known appointee. Last 4 tournaments they are qualified for semi-final. And Sachin 11, you know about that. Mahesh ball, this time dry. Not a very powerful stroke. And very correct mixing from the our mixing team. PIP on your TV monitor. So 1-2 score now is 9 for no wicket. Here turn Mahesh, who is the genuine in-cutter bowler. Balls. There's a chasing by batsman, wide signal from umpire, not a very good stroke from Sandeep Patil. He chased his ball and finally beats him outside of stump, but a wide signal from umpire. Not a pure cricketing stroke from Sandeep Patil. So 1-2 score now, 10 for no wicket. This telecast comes to you from Shrikar Live, Shrikar TV. This time it drives straight to short cover, could be a run out chance. There is a very loud appeal and finally we wait for umpire decision. Is out, yes. Umpire Datar given a out, run out. Very good stop by Ramesh. He is the captain of Sachin 11, I think. The captain right on the 30-yard circle. We have to look in replay. A dry straight to captain, and there is a Ramesh who filled in one action and a one action throw on the right end. Looks as replay. Over pitch dry. That's the PIP. And Ramesh throw. Very good. There's the hard work made by a wicket keeper also. To collect the ball in front of his stump. This is not a good tactic, but this time a good tactic. And finally, Sandeep Patil back to the pavilion. Huh? Is Sandeep Patil also, second Sandeep Patil. There are 3 Sandeep. लगता है जय बजरंग के पास बहुत दीप है. Here turn Mahesh, 10 for 1 wicket. Man out Sandeep Patil. This time another Sandeep Patil facing Mahesh, a white signal from Shintre. So score was up to 11 for 1 wicket. Yes, there is a dancing crowd because yes, there is a photo of Jai Bajrang, the supporter of Jai Bajrang on the Asha Patil north stand. They are enjoying, but Sachin 11 also dancing crowd. Mahesh ball. Another white signal from umpire. 1-2 score now. It's 12 for 1 wicket. There's a slightly disappoint. Harish, he is the genuine in-cutter bowler. He is pitching wide around the off stump. If he is pitching around the off stump and into the batsman, they are like Amar Ekta's Ekta missile last night. That's a beauty delivery when Papa gets bowled. दोनों कप्तान भी हमें सहयोग करे और दोनों अंपायर भी हमें सहयोग करे. वक्त का तकाजा है. 45 मिनट में आपको गेम खत्म करना है. 9:05 पे गेम शुरू हुआ है. This time a Yorker lane, this time a better lane delivery on the block, or finally
placing square of the offside. Ramesh is there and there were no runs. 12 for 1 wicket. TV scoreboard showing 13 for 1 wicket. 12 for 1 wicket. The official scorer. This time a faster lane delivery coming into the batsman, and Sandeep off the back foot, try to pushing square up the offside. Beats him, beautiful delivery from Mahesh. And Harish, these two tough teams playing a tough game. I think this is not a one-sided game because these two are the very tough team in Bhiwandi. This time a very fine stroke off his leg, clicks him away to deep mid wicket. There's the fielder. In comes throw. Farhan is there. Right on the deep mid wicket boundary. And batsmen go for 1. So end of the second over. It's 13 for 1. And this is the third match today. Fourth match. After this, another mega match, I think. Osmania versus Shivaji. Then challenge versus Gokul Nagar. And finally, the last match, Achanak meet New Empire. Another interesting match. There's the decision of the run out. A very bad running, bat in the air. On your TV monitor, the Ranjit Bhai. रमेश की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, स्ट्रोक लगाने की कोशिश नहीं की वहां संदीप पाटिल ने, और गेंद विकेट कीपर के महफूज हाथों में। विकेट कीपर शायद बली हैं, बली हमेशा बली की तलाश में रहते हैं। इस मर्तबा यॉर्कर लाइन की गेंद और क्लीन बोल्ड। रमेश, जिन्होंने एक कप्तान का कार्यभार निभाया है, पहले एक रन आउट किया और एक बहुत ही खूबसूरत स्विंगिंग यॉर्कर जिसे कहूंगा मैं, क्लीन बोल्ड कर दिया संदीप पाटिल को। तो 2 संदीप पाटिल पवेलियन की राह ले चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत यॉर्कर। हरीश, हमने देखा रिप्ले में, बैट्समैन के पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, लगभग उन्होंने बल्ला नीचे टेक दिया था। ये रंजीत भाई हैं और उनके अंकल, जिनका हमने हार्दिक स्वागत किया है। रंजीत भाई, अंकल, वेलकम वंस मोर टू यू। और पीछे उस्मानिया के खिलाड़ी शोएब नजर आते हुए और हमारे तमाम वॉलंटियर्स बिल्कुल वो बजाज पल्सर की रक्षा करते हुए लगभग। लेकिन रक्षा सही कौन करेगा, ये कल परसों की रात में हरेश फैसला हो जाएगा। आज जुमा का दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हाउसफुल क्राउड रहेगा। आज भिवंडी के थिएटर तो हाउसफुल रहते ही हैं, लेकिन आज ग्राउंड भी हाउसफुल रहेंगे। नए बल्लेबाज खेलने के लिए सुजीत, लेकिन परशु अब तक नहीं आए, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जय बजरंग के। परशु, जिन्होंने मैंने देखा आनंद प्रेरणा कप में बहुत से मैचेस अकेले नहीं जीता है, और 1 मैन शो परशु। दरमियान रमेश की गेंद कलाइयों के सारे इसको मोड़ते हुए ऑन साइड पर 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बरकरार हो गया 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल जहां तक सवाल है जय बजरंग का, जय बजरंग की स्थिति थोड़ी नाजुक है। 2 बेहतरीन बल्लेबाज पवेलियन की राह ले चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर था रमेश का, जिसपे बोल्ड हुए थे संदीप पाटिल। रमेश, उनकी अगली गेंद इस पर दबा, लैप स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत अच्छा थ्रो, सिर्फ 1 रन बना। सचिन 11 एक अच्छी फील्डिंग साइड, लेकिन जय बजरंग की फील्डिंग लगभग सचिन 11 से भी थोड़ी अच्छी है, यहां तक मेरा अपना ओपिनियन है। रमेश, ये गेंद इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गेंद को पिक करते हुए फुल टॉस पे और टर्न कर दिया ऑन साइड पे 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बरकरार हो गया 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 का खेल जारी और गेंदबाजी कर रहे हैं रमेश, जबकि अब सामना करेंगे संदीप नाइक। सुजीत खेल रहे हैं 2 रन बना के, जबकि नाइक ने बना रखे हैं 5 रन 6 रन। अंपायर शरद दाता और अंपायर प्रदीप शिंत्रे।
रमेश अपने स्टेप में चूकते हुए 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आप देख रहे हैं चैलेंज प्रेसिडेंट कप 2002 श्रीकार टीवी के सौजन्य से। इस मरतबा उछाल दिया और गेंद बहुत दूर आसमानी टोला 6 रन। बहुत ही जोरदार स्ट्रोक नाइक का, बहुत ही जोरदार स्ट्रोक। हमने जगदीश नाइक को छक्का लगाते देखा, आज देख रहे हैं हम संदीप नाइक को छक्का लगाते। लेकिन इस टूर्नामेंट में जगदीश नाइक ने नहीं छक्का लगाया था, उसकी जगह छक्का लगाने वाले थे लालचंद, जिन्होंने कल बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी की थी। जय दुर्गा के लिए देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस गेंद को हवा में उछाल दिया उन्होंने, और गेंद बहुत दूर लगभग तीसरे माले पे लगती हुई सामने वाले बिल्डिंग के दर्शकों को एक सलाम देती हुई 6 रनों का। नाइक पहुंचे 12 रन पर और अपनी टीम के स्कोर को उछाल के पहुंचा दिया है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ओवर समाप्ति में 3 और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और हरीश, ये सचिन 11 के कैप्टन की बहुत अच्छी थिंकिंग कि उन्होंने लाया है उनके तेज गेंदबाज फरहान को मोर्चे पे। देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रोक, मानो रिकी पॉइंटिंग को देख रहे हो। और कैमरामैन को भी लगभग इस छक्के ने जागते रहो का आदेश दिया, जो हमेशा ही जागे हुए हैं। फरहान की पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत, इसको हट रहा है, लेकिन प्लेसमेंट अगर रहता तो गेंद बिजली की रफ्तार से वहां पहुंची थी। सिर्फ 1 रन बना। इस 1 रन के साथ 23 रन जय बजरंग। अब जय बजरंग के बल्लेबाज रंग में आते हुए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, खासतौर से संदीप नाइक बहुत खतरनाक लग रहे हैं आज। और इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर कड़ी परीक्षा ली वहां पर फरहान ने संदीप नाइक की बीट किया। कल पहले मुकाबले में जय दुर्गा का मुकाबला होगा हमदम से, और हमदम को जय दुर्गा की तरफ से चुनौती रहेगी। इस मरतबा इस गेंद को ऑफिस टॉस खेलना चाहते थे, तेज गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की जानिब आई थी। नाइक 1 रन बनाने का मौका। नाइक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का भी लगा चुके हैं और 13 रन पे खेल रहे हैं, जबकि स्कोर पहुंचा 24 रन चौथे ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे नए बल्लेबाज सुजीत, जो 2 रन बना के खेल रहे हैं। 3 रन बनाए सुजीत ने। फरहान मुड़ते हुए आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की जानिब से। इस मतलब बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही खूबसूरत रहा है। जहां तक ताल्लुक है हरीश सुजीत का, रन तो जरूर 4 बनाए, लेकिन चारों स्ट्रोक दर्शनीय स्ट्रोक, डिलाइटफुल कवर ड्राइव। I think he is a batsman of cameraman. लेकिन टीम के लिए भी एक एक से वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए हरीश। 1 रन के साथ 25 रन जय बजरंग। मरतबा फिर से उछाल दिया, एक और आसमानी टोला और गेंद बहुत दूर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रनों के लिए। ओ सुजीत शायद परशु का इंतजार नहीं कर रहे हैं। सुजीत, संदीप नाइक परशु का इंतजार नहीं कर रहे हैं। संदीप नाइक जानते हैं कि परशु छक्का लगाएंगे, और ये श्रीकार छक्का आपके टीवी मॉनिटर पे भी भिवंडी.com की जानिब से बताया जाने वाला ये श्रीकार छक्का। देखिए कितनी खूबसूरती से ये श्रीकार छक्का लगाया था वहां पर संदीप नाइक ने। अर्ली इन द इनिंग, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। बहुत ही तेज शुरुआत यहाँ पर, और मजबूर कर दिया वहां सचिन 11 को एक कॉन्फ्रेंस करने कि आगे की नीति क्या हो, किस तरह रोका जाए इस बहते हुए तूफान को, और रोक पाते हैं या नहीं, और रन कहां तक बनते हैं, या रनों का ये दरिया बहते ही रहता है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, नहीं 4था ओवर चल रहा है। दोनों अंपायर टाइम का ख्याल दे, दोनों कैप्टन हमको कोऑपरेट करे। फरहान को बहुत ही जोरदार छक्का लगाया। इतनी तेज गेंद को इतना अच्छा कनेक्ट करना, ये अपने आप में भी एक कलात्मक। और संदीप नाइक 19 रन पे खेल रहे हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल।
सॉरी 3 छक्के शामिल है, 2 छक्के शामिल। इस मरतबा इस गेंद को ऑन ट्राई किया है, मना करते हुए वहां पर सिर्फ 1 रन बना। तो 32 रन। ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 8.0 के रन रेट से खेलती हुई टीम 32 रन। मैं जावेद बोगी खाड़ीपार के, जावेद मोमिन उर्फ बोगी खाड़ीपार के अगर हो यहाँ पर ग्राउंड पे या मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो उनसे मुझे काम है वो आकर सिद्दीक बाबे को कमेंट्री बॉक्स में मिले और देखना है ये रनों का बहता दरिया कहाँ तक खत्म होता है या उस पर रोक लगता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू कैमरा में इस चांद का जो कम होता हुआ जाता है, लेकिन यहाँ रन बढ़ते जा रहे हैं और आगे क्या होगा इसके लिए आए हरेश पंड्या। जी हाँ, थैंक यू सिद्दीक बाबे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी निकली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने चैलेंज कप को बनाया। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड चैलेंज कप फॉर एवरीबडी नाउ। संदीप नाइक और सुजीत 2 बैट्समैन, नया ओवर लेकर तैयार बॉलर सतीश और जय बजरंग 11 वाकई में अब तेज तर्रार क्रिकेट के ऊपर उतर आती हुई। पहली बॉल ओवर पिच और संदीप नाइक के बल्ले से निकलता हुआ एक और श्रीकार सिक्सर। केवल टाइमिंग, बाकी का काम गेंद ने किया। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और फुटवर्क। 2 कदम आगे आए, शॉट उठाया अपने बल्ले को घुमाते हुए, फुल स्विंग ऑफ द बैट। जो बैट का कर्व बनता है वो मैं डेफिनेटली टीवी में देखना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये दृश्य आंखों के लिए बहुत ही सुंदर होगा। पूरा बल्ला घुमाया और अपने ऊंचे कद का उन्होंने लाभ भी उठाया। संदीप नाइक जय बजरंग टीम को पहुंचाते हुए 38 रनों पर 38। हरेश सोचते होंगे सचिन 11 के कितने संदीप को वापस भेजे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी जय बजरंग 11। एक और आसमानी टोला, फील्डर अपनी जगह पर खड़े रहते हुए और एक और श्रीकार सिक्सर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। पहले मिड ऑन और अब एक्स्ट्रा कवर। मैदान के चारों ओर छाए हुए संदीप मानो उस संदीप पाटिल की याद ताजा कर रहे हैं, जबकि ये संदीप नाइक संदीप पाटिल की याद को ताजा करते हुए। इट इज नॉट इजी टू हिट सिक्सर इन एक्स्ट्रा कवर। ये देखिए किस तरह पिकअप किया बॉल को। ऑफ स्टंप के कितने बाहर बॉल ने टप्पा खाया था। फुल स्विंग ऑफ द बैट, जो कर्व बनाया बैट ने। बाकी का काम बॉल की एलिवेशन ने किया। एमआरआई की टेनिस बॉल श्रीकार पेविलियन की ओर जाती हुई, वहां पर बैठे हुए खिलाड़ियों के लिए वार्निंग बेल बजाती हुई और श्रीकार के गणपत भाई को सलाम करता हुआ सिक्सर। Harish, this is shot of day, I think. Wonderful 6, wonderful 6. इस बार एक और स्ट्रेट शॉट, 6 रन। श्रीकार सिक्सर बाय संदीप नाइक। चांद की चांदनी, अरबी समुद्र का पानी और संदीप नाइक के बल्ले छुपे हुए रन, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। What a beginning by him. What a shot. लगातार 3 सिक्सर्स और ये तो शुरुआत है। 50 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट में हमने दीपक को देखा था न्यू एम्पायर के 6 सिक्सर्स लगाते हुए, और इस बार क्लीन बोल्ड। लेकिन एक अच्छी पारी खेलने के बाद संदीप नाइक आउट, अपने कैप को निकाला। बट व्हाट अ गुड इनिंग्स बाय संदीप नाइक। अपने बैट को श्रीकार पेविलियन के ऊपर सिक्सर लगाने के लिए श्रीकार ग्रुप की ओर से 501 रुपए का। आगे जो भी बल्लेबाज श्रीकार पेविलियन के ऊपर सिक्सर लगाएगा उसे श्रीकार 501 का अवार्ड दिया जाएगा। 32 रन बनाकर आउट हुए संदीप नाइक और अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं नए बैट्समैन। श्रीकार पेविलियन के ऊपर जो भी बैट्समैन 6 लगाएगा उसे श्रीकार ग्रुप की ओर से
501 रुपए का कैश अवार्ड। वेरी गुड अवार्ड। थैंक यू वेरी मच गणपत भाई, किरण भाई, किशोर भाई एंड हसमुख भाई एवं शांतिलाल जी। श्रीकार ग्रुप, बढ़िया ग्रुप। विनिंग इज योर एम, क्वालिटी इज अवर नेम। श्रीकार श्रीकार श्रीकार। नए बैट्समैन है परशु, और वाकई में जय बजरंग 11 के नाक में नकेल डालने के लिए यहां पर एक बार फिर से हवा में बॉल रही थी। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला गया, टावरिंग 6। और कारिवली गांव के सरपंच स्वयं अपने बच्चों को अच्छा खेलता हुए देखने के लिए यहां पधारे हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। इस बार बहुत अच्छा लेग ब्रेक बॉल सतीश द्वारा, घूमकर खेलना चाहते थे, और संदीप नाइक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे मुझे वो मशहूर एडवर्टाइजमेंट का जुमला याद आ रहा था, ढूंढते रह जाओगे। बॉल वाकई में दूर दूर जा रही थी। 50 फॉर 3 जय बजरंग। 5वां ओवर चल रहा है। डॉट बॉल नहीं, डेड बॉल। क्रिकेट के नियम नंबर 23 का प्रयोग किया। बॉलर जब अपने रनअप को चूक जाते हैं तो अंपायर के पास अधिकार है उस बॉल को डेड देने का। उसका उपयोग अंपायर शरद दातार द्वारा। सतीश की अगली बॉल। इस बार एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे, बॉल जा रही है फाइनल की तरफ। 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। 1 रन परशुराम के लिए। दूसरी ओर सुजीत अच्छी बैटिंग करते हुए 4 सिंगल्स, और कुल मिलाकर जय बजरंग 11 का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 51 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। संदीप पाटिल 3 रन बनाकर आउट हुए। संदीप पाटिल जूनियर 1 रन बनाकर आउट हुए। संदीप नाइक 32 रन बनाकर आउट हुए। 5 सिक्सर्स उन्होंने लगाए। इस तरह और भी सिक्सर्स आप देखेंगे। सचिन 11 जिसके पास है लारा, इसके बाद शिवाजी, उस्मानिया, अचानक, न्यू एम्पायर, चैलेंज, गोकुल नगर। कितने सारे सिक्सर्स, कितने सारे बाउंड्रीज। पैविलियन का दृश्य, जय बजरंग के सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती हुई। देयर यू सी संदीप नाइक रातों रात हीरो बने, और उनके हाथ में कौन सी कंपनी का बैट है मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। आई थिंक इट इज गन एंड मूर। 38 रन्स, यस। संदीप नाइक, हमारे स्कोरर प्रवीण केडिया भी संदीप नाइक की पारी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके 6 रन कम लिखे थे। गुड बैटिंग। चैलेंज प्रेसिडेंट कप में इसी तरह का प्रदर्शन हर वर्ष देखने को मिलता है, और इस वर्ष भी पूरे मनोरंजन की गारंटी देता हुआ ये चैलेंज प्रेसिडेंट कप। ओवर पिच बॉल ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया वहां पर बैट्समैन परशुराम ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहला विकेट 10 पर, दूसरा 13 पर, तीसरा विकेट 50 पर। तीसरे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी जय बजरंग टीम के सुजीत और संदीप नाइक की ओर से, जिसमें अधिकतर रन संदीप नाइक ने बनाए। सतीश की अगली बॉल, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव। हाथ से बॉल छूटती हुई, लेकिन दूर से बैकअप करने के लिए खिलाड़ी मौजूद। 2 रन सुजीत के खाते में। सुजीत द्वारा लिया गया ये पहला डबल रन। उनकी निजी रन संख्या पहुंची 6 पर। 2 पर खेल रहे हैं परशु। जय बजरंग 54 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 6ठा ओवर मार्गस्थ हो रहा है। शिकार एंड से बॉलिंग की शुरुआत एक बार फिर से। नए ओवर की शुरुआत करते हुए महेश। इस बार हाथ से क्या छूटता हुआ, और 2 रन। सचिन 11 के ऊपर हल्ला बोल दिया है इस वक्त जय बजरंग के बल्लेबाजों ने। क्या संदेशा दे रहे हैं। आज चैलेंज ग्राउंड से जय बजरंग ने ललकारा है, दूर हटो, हमारा है। 56। एक और बेहतरीन ड्राइव महेश की बॉल पर लगाते हुए सुजीत, और ओवरथ्रो यहां पर। सचिन 11 पिछले वर्ष जयदुर्गा के सामने पहले चरण में पराजित हुई थी। इस वर्ष जय बजरंग उनके सामने खेल रही है।
कारेवली गांव के उप सरपंच उनके प्रशिक्षक हैं एंड ही मस्ट बी वेरी हैप्पी। बहुत आसान कैचेस छूटते हुए दरअसल में पूरी तरह से हतप्रभ हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें। विचार शून्यता, विचारों का शून्यावकाश यहां पर सचिन 11 की प्लानिंग में। हल्ला बोलते हुए जय बजरंग के बल्लेबाज। एक और टावरिंग शॉट और अब की बार बॉलर द्वारा लिया गया कैच, बहुत ही अच्छा कैच और विकेट गिरता हुआ यहां पर बैट्समैन सुजीत का विकेट नंबर 4 और सचिन 11 के खिलाड़ी अब विकेट का महत्व समझते हुए अच्छी फील्डिंग। जब क्षेत्ररक्षक अच्छा साथ नहीं दे रहे थे तो बॉलर ने सोचा जो भी करना है मुझे ही करना है। क्रीज के कोने से एंगल बनाकर बॉल को अंदर लाए थे, शरीर से काफी दूर खेला था हवा में, एलिवेशन नहीं मिल पाया, बॉल जा रही थी मिड ऑफ की तरफ। अपने फॉलो थ्रू में आगे आए हुए बॉलर के लिए पीछे जाना आसान नहीं था, लेकिन एक दर्शनीय कैच, स्काई स्क्रैपर। विकेट गिरता हुआ चौथा, श्रीकार शिकार करते हुए बॉलर महेश 58 फॉर 4। नए बैट्समैन कुंदन, स्ट्राइक ले रहे हैं परशुराम। जय बजरंग की टीम धुलाई करती हुई सचिन 11 की। इस बार ओवर पिच बॉल और इसको मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है बैट्समैन परशुराम ने श्रीकार सिक्सर के लिए। टच एंड गो, मानो अपने बल्ले से बॉल के ऊपर 6 रन का रबर स्टैंप मारा हो। श्रीकार रबर स्टैंप ऑफ 6 रन्स। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स भिवंडी.com द्वारा। ये देखिए किस तरह से महेश ने गेंद को ओवर पिच किया था, बॉल के लेंथ को पहले ही पिक कर दिया बैट्समैन ने। बाकी का काम टाइमिंग, लाजवाब फुटवर्क और सही प्लेसमेंट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। 6 ओवर की समाप्ति पर इस ओवर में 13 रन बनाए गए, 1 विकेट गिरा। पहले 3 ओवर में 22 रन और उसके बाद वाले 3 ओवर में 32 रन। बल्कि 42 रन, सॉरी प्रवीण। पहले 3 ओवर में 22, उसके बाद वाले 3 ओवर में 42 और आखिरी 2 ओवर में क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। बैट्समैन परशु सामना करेंगे सतीश का, जबकि कुंदन है बैट्समैन, क्षमा करें, कैप पहन रखी है उन्होंने। 1 रन कुंदन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। पहले संदीप नाइक द्वारा अच्छी बैटिंग, उसके बाद सुजीत द्वारा अच्छी बैटिंग और अब परशु द्वारा, जो इस वक्त आक्रमण कक्ष में तैयार सामना करने के लिए। सतीश की अगली गेंद का राइट आर्म ओवर द विकेट। सतीश इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पलक झपकते बॉल बल्ली के हाथों में। अब यहां पर सचिन 11 के पास भी ऐसे स्ट्राइक बैट्समैन है, लेकिन ये स्ट्राइक बैट्समैन तभी रन बना पाएंगे जब कम रन संख्या पर वो जय बजरंग को आउट करें, क्योंकि 100 रन चेस करना इस मैदान के ऊपर बहुत डिफिकल्ट होगा। 80 रन 70 रन में समझ सकता हूं, लेकिन एनीथिंग अबव 80, कितनी भी डीप बैटिंग लाइनअप हो, chasing any score above 80 is going to be very tough on this ground. सतीश की अगली बॉल, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, पूरी तरह से मिस टाइम किया। बल्ली तुरंत बॉल के ऊपर हावी होते हुए कंसोलिडेशन का काम। इस मैदान में स्थित श्रीकार पेविलियन के ऊपर अगर कोई बैट्समैन सिक्सर लगाता है तो 501 रुपए का कैश अवार्ड, जिसको जीता है अभी अभी संदीप नाइक ने। अगली बॉल, एक और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बॉल स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ जाती हुई, विकेट कीपर स्वयं वहां पर दौड़ कर जाते हुए। और इस वक्त तक कारेवली गांव के उप सरपंच श्री किशोर गरत यहां पर आए हुए हैं, जिनकी जय बजरंग टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, उनको अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच किशोर गरत।
इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल, डॉट बॉल। ओवर नंबर 7 में वाकई रन बनाने की रफ्तार में गिरावट आती हुई सतीश इंटेलिजेंट बॉलिंग करते हुए, सतीश की बॉल को संदीप नाइक बहुत जल्दी पिकअप कर रहे थे। यहां पर परशुराम बॉल की लेंथ को पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज अ गुड ओवर फॉर सचिन 11। श्रीकारण से अगली बॉल, लेग स्टंप की लाइन के बहुत ज्यादा बाहर थी ऐसा हमारा मानना है। फाइन लेग पर जाती हुई डीप फाइन लेग पर उसे रोका गया थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा। वाइड बॉल का इशारा, कुल मिलाकर 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन, 68। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो एंजॉय करते हुए इस क्रिकेट शो को, शिकार ग्रुप का परिवार यहां पर, श्री किशोर गरत, कारेवली गांव के उप सरपंच, यहां पर कारेवली गांव के उप सरपंच श्री किशोर गरत की ओर से भी संदीप नाइक को सिक्सर के लिए 500 रुपए का कैश अवार्ड घोषित किया गया है। यानी कि संदीप नाइक के बैंक बैलेंस में 1000 रुपए की वृद्धि होने जा रही है। और ये तो शुरुआत है, अभी और 2 दिन चैलेंज कप खेला जाना है, हजारों पति बन सकते हैं। 1 रन और। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन, 71। 7 ओवर की समाप्ति पर 71 रन। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर स्कोर शुड बी 71। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक समय था जब 58 के योग पर चौथा विकेट गिरा तो हमें लग रहा था क्या होगा, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप उसके बाद यहां पर 13 रनों की हमें देखने को मिली है। ये मूविंग डिस्प्ले जिसमें हमारे सभी स्पॉन्सर्स के नाम आप देख रहे हैं। प्रमुख स्पॉन्सर्स श्रीकार पॉलिएस्टर जिन्होंने बजाज पल्सर को स्पॉन्सर किया है। अन्य स्पॉन्सर्स वीमा पॉलिटेक्स जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए चेक स्पॉन्सर किया है। स्टेटस और सनविन डाइडियान जिन्होंने टी शर्ट स्पॉन्सर किए हैं खिलाड़ियों के लिए। इसके अलावा निसार भाटी एंड सन्स, राहुल रोडवेज के श्री छगन पाटिल, पप्पू रांका, बॉम्बे वाला सराफ, होटल रीजन गार्डन श्री शंकर पुजारी, रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट्स, गुरुदेव स्वीट एंड फरसान मार्ट श्री भरत सूचक, कमल हेदा, विलास वाड़के, के इमिटेशन ज्वेलरी के श्री के जैन, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये सारा टेलीकास्ट आप देख रहे हैं रंजीत एंड रंजीत एंटरप्राइजेस की जानिब से टीवी सेट्स पर। नए ओवर की शुरुआत करते हुए फरहान, उनकी पहली बॉल टप्पा खाकर विकेट कीपर के हाथों में सेटल होते हुए अगली बॉल, और इस लॉन्ग हॉप बॉल को उठा दिया है बैट्समैन ने। 6 रन के लिए अब की बार कुंदन द्वारा लगाया गया श्रीकार सिक्सर। बॉल हवा में छलांग लेती हुई, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77, 77 रन। इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के डेप्यूटी कमिश्नर श्री अच्युत आंगे साहब। इनका हार्दिक स्वागत है। वेलकम अच्युत आंगे साहेब। सर्व प्रेक्षकांच्या वतीने जोरदार टाळ्यांच्या गजऱ्यामध्ये अच्युत आंगे साहेब आपलं हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। इस बार एक और आसमानी टोला, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बैट्समैन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन। एक बार फिर से भिवंडी की जनता की जानकारी के लिए, इस वक्त हमारे बीच इस मैच का आनंद लेने के लिए भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी कमिश्नर श्री अच्युत आंगे, इनका आगमन हो चुका है। उनका हार्दिक स्वागत है। इस बार 4 रन का इशारा फाइन लेग फेंस पर। जहां चाहे, जिधर चाहे, जैसे चाहे जय बजरंग के बल्लेबाज रन बना रहे हैं। ये उनकी
वाकई में बहुत क्वालिटी भरी बल्लेबाजी है। 83। सचिन 11 के लिए बहुत मुश्किल होगा ये स्कोर को चेस करना। वाकई में उनको सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना पड़ेगा जब बैटिंग के लिए आएंगे। इस बार शॉर्ट बॉल एंड लुक एट द शॉट। लॉन्ग हॉप बॉल कमर की ऊंचाई तक आती हुई लेग स्टंप के ऊपर और बल्ले को घुमाते हुए खेल दिया है जय बजरंग के बैट्समैन कुंदन ने श्रीकार सिक्सर के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से। डेप्यूटी कमिश्नर श्री अच्युत हंगे साहब का बहुत बढ़िया स्वागत इस श्रीकार सिक्सर से। हरीश, मैं समझता हूँ ये सबसे लंबा सिक्स है इस टूर्नामेंट का, बहुत दूर जाके गिरा है। 89 अभी तक इस स्पर्धा का हाईएस्ट स्कोर रहा है 96 का बोरीवली पड़गा द्वारा 97 रन का, और उसको मैच करने की कोशिश यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने की तरकीब नाकामयाब होती हुई, लेकिन प्लेसमेंट सही थी इसलिए 1 रन। टाइमिंग सही नहीं हो पाया था और आखिरकार 8 ओवर समाप्त होते हुए सचिन 11 के खिलाड़ी जब पवेलियन में जा रहे हैं तो चैन की सांस ले रहे हैं। आखिरकार 8 ओवर हमारे खत्म तो हुए, जय बजरंग का आक्रमण हम पर खत्म तो हुआ। ये देखिए आपके सामने डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अच्युत आंगे, श्री विलास आर और गणपत भाई। वेरी वेल प्लेड कुंदन, वेरी वेल प्लेड परशु, वेरी वेल प्लेड संदीप नाइक, वेरी वेल प्लेड सुजीत। ये देखिए आखिरी चित्रा आर्ट्स के मधु कोडम जहां कहीं भी हो यहां पर संपर्क करें गेस्ट बॉक्स में। टावरिंग 6। चांद तारों से चलना है आगे और आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाए सारी टीमें, ये जय बजरंग का नारा है। आपने देखा एक से बढ़कर एक सिक्सर्स, और ये देखिए चैलेंज ग्राउंड का दृश्य, केसरी रंग के फ्लोरोसेंट रंग में रंगे हुए स्टंप्स। अमोल इज गिविंग न्यू बॉल। अगला मैच खेला जाएगा शिवाजी 11 और उस्मानिया 11 के बीच में। इस मैच के टॉस करने के लिए मैं दोनों कैप्टन को गेस्ट बॉक्स के नीचे आने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी कमिश्नर श्री अच्युत आंगे आपके टीवी स्क्रीन पर, उनके साथ में दीपक कदम, श्रीकार पॉलिएस्टर के श्री गणपत भाई, सुस्वागतम श्री अच्युत आंगे साहब। भिवंडी निजामपुर नगर परिषद को अब महानगर पालिका का स्टेटस मिला है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। और भिवंडी शहर में चैलेंज जैसा जो मैदान है और उसका जो मेंटेनेंस है, वाकई में हम आशा करते हैं आपको इस मैदान की मेंटेनेंस, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का वातावरण जरूर पसंद आया होगा। एक तरफ चांद तारों से बात करता हुआ और एक तरफ आज गेंद हवा से बात करती हुई मैदान के बाहर चारों ओर उड़ती चली जा रही है, और ये नतीजा है कि सचिन 11 को मैच जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवरों में 91 रन बनाने हैं, और अगर वो ये 91 रन चेस कर लेते हैं तो मैं समझता हूं उनको चैलेंज प्रेसिडेंट कप जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। देयर कॉन्फिडेंस विल शूट अप लाइक एनीथिंग। सिद्दीक बाबे। थैंक यू हरीश। सो श्याम वायरमैन जहाँ कहीं भी हो नीचे आके मिल ले, श्याम वायरमैन। सो थैंक यू हरीश। सो वी वेलकम टू respected Mr. Assistant Commissioner of City, Bhiwandi City, Nizampur Corporation, Achyut Hange, on your team monitor. Welcome to Mr. Kadam, and there on your team monitor, Mr. Ganpat Bhai, the proprietor of Shrikar Polyester. Welcome
Mr. Achyutange, and welcome respected Mr. Kadam. You are watching the Challenge President Cup 2002, the match between Sachin 11 and Jai Bajrang. That's the view of the Challenge Place Pavilion and the signboard, a beautiful signboard of Challenge President Cup 2002. So very huge total chasing by Sachin 11. शिवाजी और उस्मानिया दोनों टीम के कैप्टनों से गुजारिश है कि आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, आप टॉस के लिए प्लीज यहां पर पहुंच जाए. शिवाजी और उस्मानिया. There's the view of the players pavilion and view of the north stand, because players pavilion in front of north stand. Satish opened the attack from Jai Bajrang. What a huge batting, what a huge sixes, all the way to the field. Terrific batting from Sandeep Naik, and the supporting batting from Kundan. Kundan 6 was, I think, outstanding 6. That's clear the building way to the 6. The two openers of Sachin 11, Lara opened the innings with Raju. Majaz not opened the innings. And Satish, who turned from Asha Patil North Stand right from the 30-yard circle. This telecast comes to you from Shrikar TV. First delivery full length wide outside of stump, no runs. नरेश देशमुख अगर कहीं भी हो तो मिक्सिंग रूम में, टीवी मिक्सिंग रूम में आ जाए. So Harish, this is the huge total. What a magnificent performance from Jai Bajrang. I told you, Jai Bajrang known a fine team. They are qualified for 4 times for the semi-final. 1 time they are runner. Satish ball wide outside of stump. White call by umpire Sharad Datar. So 1 for no wicket. There's a electric supply and maintained by Sham and Ayaz. And here we was Satish, right on the 30-yard circle. Charging, that's a beautiful delivery, that's a beautiful delivery. Beats-him batsman outside of stump. There's appeal for umpire Pardeep Shintre, who says no. A good stumping by wicketkeeper Pramod. Once more the view of the VIP dice. There's the Assistant Commissioner Achyut Hange. Left right of Commissioner there is a Kadam Sahab, and left of the Commissioner the proprietor of Shrikar, Ganpat Bhai. So this time it's quadra, not a firm timing stroke. They go for 1. This telecast comes to you from Shrikar TV. This wonderful telecast comes to you by the Video Vision Ranjit and Ranjita Enterpriser. And this graphics on your TV monitor telecast by bhiwandi.com. If you want the detail of this tournament, the graphics of this tournament, you open your website www.bhiwandi.com. And here we was Satish. After this, Osmania versus शिवाजी, दोनों के कैप्टन यहाँ पे रिपोर्ट करे. उस्मानिया और शिवाजी के कैप्टन. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तो right arm round the wicket, and batsman draw straight to fielder, no runs. Lara was the danger man. Lara facing Satish, who turned from the Asha Patil North Stand. Goes past, charging to the wicket now. Bows Lara drive, form stroke, deep, ball is travelling to deep mid wicket. They go for 1. In comes throw, and Lara settled for 1. So it's 3 for no wicket. 3 for no wicket.
Electronic board showing 2. There's 3 for no wicket. And here turns Satish. Goes to Raju, who going for a big swung on the inside. Beats him outside of his stump. Lovely over. Beautiful ball. Beautiful over from Satish. And Jai Bajrang right on top now. But Harish, one thing is mentioned also. Sachin 11 have a strong batting lineup. Batsmen to follow. The danger Subhash, Ramesh. And I think there's the pinch hitter Satish. Yesterday he played a good knock here. Lara himself a very fine batsman. Looked at replay of the last ball. Batsman tried to play swung on the onside. Very well collected by wicketkeeper. Jumping on his legs. And welcome to Santosh Chavan in commentary box. Once more on your TV monitor, the Assistant Commissioner of Bhiwandi City Nizampur Corporation, Achyut Hange, is watching very seriously of this match and is very happy about the atmosphere of the cricketing event, mega event here at the Challenge Cricket Ground. He also congratulates Vilasar and company because here is the huge arrangement, a terrific telecast and a terrific ground here. This time Lara swung very hard. There's the Whitey Schmidt wicket right on the boundary. They go for 1. Harish Lara tried for a huge high stroke, but ball is just running with the carpet to fielder at the onside. Pashu, who is the great all-rounder of Jai Bajrang. Here he turn now, charging. Goes to that's inside out. It could be a 6. Oh, what a catch! Oh, what a catch! And catches winning matches. No doubt at all. He's an outstanding catch taken by Sandeep Naik. Now today is the day of Sandeep Naik. What a catch really. We have to look in replay. There is our guest on the dice, the Assistant Commissioner Achyut Hange. He also wants to see replay. That's the terrific inside stroke from Raju. Harish, I think that's a very good stroke. But finally, not get the elevation. And a catch is in front of Shrikar Pavilion. If ball cross the ropes, he gets 6. He gets the award of 501 from Shrikar. दूसरी एक चीज यहाँ पर आपने गौर की होगी, संदीप नाइक की जो हाइट है, ही इज अ टॉल फील्डर और इसके लिए उनको बाउंड्री पर रखा गया है. ये भी उनके पक्ष में ज्यादा है. अगर कोई नाटेकत का खिलाड़ी होता तो शायद वो बॉल उनके ऊपर से भी चली जा सकती थी. So very, very great catch. Harish, you think very right. Harish, do you think there is the top fielder of the fielding side like a long on position, long off position? This time Lara once more tried to swing. Lara every ball tried to hit because he know his team is chasing a huge target of 91. So every ball going for a swing stroke and finally doesn't succeed. He gets only 1, always time. In here we watch Pashu. He is the great all-rounder. Claimed the very important wicket. Goes to Lara, swung hard and high. But there is the first bounce, straight to backward square leg boundary. What a fielding. Jai Bajrang, Harish, I told you in the innings of Jai Bajrang batting, Jai Bajrang known a fine fielding side. After Shivaji, I think Jai Bajrang is a very good fielding side. Their Sarpanch is very happy. The Karauli Sarpanch with us. Up Sarpanch, I think. Mr. Kishore Garas is very happy. In last week when Kiran hits a 6, he's talking on his mobile. मैं चैलेंज स्पोर्ट्स
और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से भैरव सेवा समाज के श्री केसरी मलजैन का हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें वेलकम कहता हूं। वेलकम मिस्टर केसरी मलजैन। Once more, Lara, try to swing inside edge, rows to the fine leg, they go for one. In comes throw, and batsmen settle for one. Our outstanding fielding side. We also, in our commentary bag, magic of Beyond the Uma. So very slowly start. After 2 overs, 7 for 1 wicket. On your TV monitor, the Bhairav Samaj, Seva Samaj, Seva Samiti Kesri Maljain, and there is a Shrikar Parivar, Kiran Seth or Kishore Seth, Aresh. Definitely, Shrikar Parivar, Sukhi Parivar, Samruddha Parivar. Yes, very good comments from him. There is a laughing, a smiling on Kiran Bhai. तो इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 7 रन बने। हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं लारा स्ट्रोक लगाने की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। हरेश, अधूरे चांद को देखकर आपने जो कहा था, अधूरे चांद पर जावेद अख्तर के पिता जान निसार अख्तर कहते हैं कि ओट में छुप गया आधा चांद, चांदनी झांक रही शाखों से, जैसे खिड़की का एक पट खोले झांकता हो कोई सलाखों से। सतीश उनके गेंद और इस पर लारा ने उछाल दिया है। ओ फिर से एक बेहतरीन कैच। इस मरतबा कौन थे वहां? नहीं, कैच तो संदीप नाइक ने नहीं कंप्लीट किया है। रिप्ले में हम देखेंगे कैच शायद संदीप पाटिल ने पकड़ा है। अंपायर पूछ रहे हैं छक्का या नहीं। अंपायर ने तीसरे अंपायर को पूछा है, तो तीसरे अंपायर संतोष चौहान देख रहे हैं। और बैट्समैन आउट, क्योंकि एक कदम अंदर उस कैच को लेने के बाद अपना संतुलन बहुत अच्छा कायम रखा था। वहां पे फील्डर कौन थे? विनोद नाइक ने। और हरीश बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था। इस मरतबा इस गेंद को उछाल दिया है, आउट होने का खतरा, और इसके साथ ही आउट। विक्की पहली गेंद पे आउट होके पवेलियन वापस। और जय बजरंग का दिन लग रहा है आज हरीश। लगातार अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छी कैचिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे वो पिछले कैच के बारे में जिसमें फील्डर ने बाउंड्री पे अपने संतुलन को बिल्कुल गिरने नहीं दिया और कायम रखा और उस कैच को पकड़ा था। मेरे साथी कमेंटेटर की टिप्पणी में सुनना चाहूंगा। एक्शन रिप्ले, बहुत ही सुंदर कैच। और इसके पहले जो कैच लिया गया था श्रीकार पेविलियन के बाहर, वो भी लाजवाब कैच था। दरअसल में जो कैच में ऊपर से आते हैं, रात को फ्लड लाइट में करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फील्डर की तारीफ करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जय बजरंग टीम एक ऐसी टीम है जो चैलेंज कप का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तक उन्होंने चैलेंज कप कभी भी जीता नहीं है, और इसलिए ये साल उन्होंने बहुत मेहनत की है। रात भर उन्होंने जाग कर प्लानिंग की होगी, मेहनत की है, और वाकई में अब ये उनके लिए अच्छे दिन का आगमन हो रहा है। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर भैरव सेवा समाज के श्री केसरी मलजैन, उनके साथ में किशोर भाई, सभी आनंद लेते हुए। एंड इट वाज इंडीड अ गुड कैच। तो सतीश हैट्रिक पे हैं, और अगर हैट्रिक करते हैं तो तीसरे बॉलर बन जाएंगे इस चैलेंज प्रेसिडेंट कप के। अभी तक 2 बॉलरों ने हैट्रिक किए, शोएब और राशिद ने। शोएब जिनका ताल्लुक हमसे है और राशिद का ताल्लुक, डेड बॉल का इशारा अंपायर का, राशिद का ताल्लुक
डीएन स्पोर्ट्स से हैट्रिक पर है। सतीश की अगेन, विनोद पीछे खेलना चाहते थे, बीट हुए, लेकिन हैट्रिक जरूर बचा। नॉन स्ट्राइक पर जो बैट्समैन हरीश खेलने आए वो है सुभाष पाइपलाइन वाला। ये बहुत ही टिपिकल वॉच बैट्समैन है, रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा लगाते हैं। आपके टीमी मॉनिटर पे असिस्टेंट कमिश्नर अच्युत हांगे साहब, कदम साहब और गणपत साहब। इस मरतबा ओवर पिच गेंद को ट्राई कर दिया उन्होंने, विनोद ने मिड विकेट की जानिब 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ तीसरे ओवर का खेल जारी है और सिर्फ 8 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। सचिन 11 एक पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करती हुई 90 रन बनाए थे जय बजरंग ने, जबकि टॉस जीता था सचिन 11 ने और आमंत्रित किया था उन्होंने बैटिंग के लिए जय बजरंग को। उस्मानिया के कैप्टन और शिवाजी के कैप्टन दोनों को आप ऑफिशियल कॉल की जा रही है, आप पहुंच जाए। उस्मानी और शिवाजी, उस्मानी और शिवाजी के कैप्टन पहुंचे अमोल। इस मरतबा अजीब और गरीबी स्ट्रोक, अजीब और गरीबी स्ट्रोक। पहले आगे आए सुभाष, फिर पीछे हटे और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गई फाइन लेग पर 1 रन के लिए। लेकिन सुभाष को बहुत ही फाइटर क्रिकेटर कहा जाता है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 3 का खेल जारी है। उस्मानिया क्रिकेट टीम के कैप्टन और शिवाजी क्रिकेट टीम के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है कि वो पहुंच जाए। मर्तबा विनोद ने ट्राई कर दिया ऑफ वाली पे, पहले बाउंस पे लॉन्ग ऑन पर एक चट्टान के रूप में तमाम पहरेदार बाउंड्री लाइन की पेट्रोलिंग करते हुए 1 रन। तो अब यहाँ पर हमारे आमंत्रण का स्वीकार करके आए हुए हैं श्री अच्युत आंगे साहब, सहायक आयुक्त भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। चैलेंज के प्रेसिडेंट श्री विलास आर पाटिल से मैं विनती करना चाहूँगा कि कृपया वे हमारे आज के मेहमान श्री अच्युत आंगे साहब का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी तरफ से प्रेम का और स्नेह का ये छोटा सा नजराना जिसका आप स्वीकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद कितने रन बने? सिर्फ 10 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पे। श्री मदन बुआ नाइक साहब का भी हार्दिक स्वागत है। उनको हमने अभी अभी देखा और जय दुर्गा के लिए देखना है क्या समाचार रहता है, क्या कल जगदीश खेल पाते हैं या नहीं। इस मरतबा इस गेंद को स्क्वायर ड्रा किया, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेके स्क्वायर टर्मिन पे जा रही है। 1 रन बना और 2 रन बनाए बहुत तेज कदमों से भागते हुए बैट्समैन ने। इन 2 रनों के साथ 12 रन। अगले मैच का टॉस भैरव सेवा समाज के श्री केसरीमल जैन इनके हाथों होने जा रहा है। शिवाजी और उस्मानिया, ये 2 टीम के कैप्टन यहाँ गेस्ट बॉक्स के पास आ जाएं। इस मैच का टॉस भैरव सेवा समाज के श्री केसरीमल जैन इनके शुभ हाथों से किया जाएगा। थैंक यू। उस्मानिया और शिवाजी दोनों टीम के कैप्टन गेस्ट बॉक्स के पास आ जाएं। हमारे कार्यकर्ता अमोल चौगले वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। इस मरतबा ओवर पिच गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, ट्राई कर दिया ऑन साइड पे विनोद ने और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। रन आउट होने का खतरा हो सकता है और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। अंपायर शरद दातार ने हम तीसरे अंपायर संतोष चौहान को कॉल किया है। हालांकि 1 रन बहुत तेजी से लिया था और सुभाष दूसरे रन के लिए पलटे थे। अगर ये विकेट गिरी तो बहुत ही हानिकारक हो सकती है सचिन 11 के लिए। हम रिप्ले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे अंपायर हमारे संतोष चौहान। और
और नॉट आउट का इशारा अंपायर संतोष चौहान का, तीसरे अंपायर संतोष चौहान ने नॉट आउट करा दिया है। हमारे कमेंट्री बॉक्स का दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर। और नीचे शिवाजी और उस्मानिया के बीच टॉस होता हुआ, और टॉस कर रहे हैं भिवंडी भैरव सेवा समिति के प्रेसिडेंट केशरी मलजैन साहब के हाथों, और वो दोनों कैप्टन से इंट्रोड्यूस कराते हुए साथ में उनके श्रीकार पॉलिएस्टर के किरण भाई, अमोल चोगले, विलासार। इस भी एक गेंद को खेल दिया है, फुल टॉस पर लेकर वाइडिश मिड विकेट पर 1 रन के लिए। काफी मुश्किल हो रहा है श्रीकार छक्का या चौका लगाना सचिन 11 के लिए। चौथे ओवर का खेल जारी, 51 रनों का पीछा करती हुई 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मैं धन्यवाद कहूंगा श्री केशरी मल जैन साहब को, जिन्होंने दोनों टीमों के बीच टॉस उड़ाया। मैं उनको थैंक्स कहता हूं चैलेंज स्पोर्ट्स की जानिब से, थैंक्स। और इस मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, बहुत अच्छी स्टंपिंग की वहां विकेट कीपर ने। सुभाष पाइपलाइन वाले का जहां तक ताल्लुक है, अच्छे स्ट्रोक्स ले रहे हैं। टॉस किसने जीता? टॉस उस्मानिया ने जीता, वो शिवाजी ने, वो ऑन द टॉस। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय कवर ड्राइव 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ मंजिल, जिस तरह दिल्ली यहां से बहुत दूर है, सचिन 11 के लिए मंजिल उतनी ही दूर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 16 रन, 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और आगे क्या अनहोनी होनी में बदल सकती है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसके लिए आए मेरे साथी कमेंटेटर हरीश पंड्या। ओवर टू हरीश। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। वाकई में अब यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है, और सिद्दीक बाबे जो स्थिति है वो सचिन 11 के पक्ष में नहीं है। 4 ओवर 17 रन, अब बचे हुए 4 ओवर में 74 रन चाहिए, और 4 ओवर में 74 रन यानी कि 24 बॉल में 74 बनाने के लिए सचिन नहीं, विविन रिचर्ड्स की तरह खेलना पड़ेगा, देन ओनली दे विल विन। और यहाँ पर अब देखना होगा अगले ओवर को लेकर किसे आजमाया जाता है। नए ओवर की बॉलर है सुजीत, वाइड बॉल से शुरुआत। अभी भी 24 बॉल बचे हैं और 73 रन चाहिए। 24 बॉल्स एंड 73 रन, यानी कि प्रत्येक बॉल पर 3 रन उनको चाहिए। 3.05 प्रत्येक बॉल पर। 1 रन और। स्कोर 19 रन, 19 फॉर द लॉस ऑफ 3। जय बजरंग 11 अगले पड़ाव पर कदम रखने जा रही है। एक अच्छा विजय। इस स्पर्धा में आज उन्होंने अपना पहला मैच खेला, लेकिन ये कोई कह नहीं सकता कि वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। एक और डॉट बॉल, फ्लैट बॉल, बॉलर सुजीत बहुत अच्छा पेस जनरेट करते हुए। बहुत ही स्लो क्रिकेट सचिन 11 द्वारा।
इस बार फुल टॉस बॉल दी, उस फुल टॉस बॉल को घुमाकर खेलना चाहते थे, प्लेसमेंट सही नहीं हो सकी थी। 1 रन से काम चलाना होगा दोनों बैट्समैन को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहला विकेट 4 पर गिरा, दूसरा 7 पर, तीसरा 7 पर और उसके बाद काफी धीमा स्कोरिंग रेट। इस बार विकेट के नीचे उतरकर स्क्वायर लेग की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, वहां पर आगे निकल आए थे, मना किया बैट्समैन ने। और अब वाकई में मैच जीतना ये एक सचिन 11 के लिए सपना बनता जा रहा है। प्रत्येक गेंद गुजरती जा रही है और उसके साथ तनाव बढ़ता हुआ। इस मैच की समाप्ति के बाद जो आगे मैच शुरू होने जा रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल अवार्ड यहां पर, वाइट बॉल का इशारा, भिवंडी पंचायत समिति के उपसभापति एवं विशेष कार्यकारी अधिकारी एवं शिवसेना शाखा काटई बाग के शाखा प्रमुख श्री यशवंत राउत, इनकी ओर से लगातार 3 चौके, लगातार 3 सिक्सर्स और लगातार 3 विकेट्स के लिए 500 रुपए का कैश अवार्ड। इस बार ओवर पिच बॉल और इसको ड्राइव करने की कोशिश बैट्समैन द्वारा, 1 रन पूरा किया। बहुत अच्छी ग्राउंड फील्डिंग जय बजरंग द्वारा। अभी तक उन्होंने कोई भी चौका खर्च नहीं किया है। बॉल को ड्राइव करने के लिए बैट्समैन आगे जरूर आए हैं लेकिन गैप में खेल नहीं पाए हैं। प्रेशर, बैट्समैन विनोद और सुभाष दोनों की तरकीब नाकामयाब होती हुई सचिन 11 स्पर्धा के बाहर होने की तैयारी में। इस बार भी एक ग्राउंड शॉट, 1 रन वाइडिश मिड ऑन पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 5 ओवरों की समाप्ति पर 24। अभी भी मैच जीतने के लिए 67 रन चाहिए 18 बॉल में, यानी कि प्रत्येक बॉल पर अब 4 रन की आवश्यकता। उस्मानिया और शिवाजी ये अगला मैच होगा जिसका टॉस अभी अभी यहां पर भैरव सेवा समाज के श्री केसरी मल जैन इनके हाथों हुआ। ये दृश्य है आपके टीवी स्क्रीन पर श्रीकार स्टैंड का। बहुत बढ़िया स्टैंड बांधा गया है और इस तरह के कुल मिलाकर 3 स्टैंड है इस मैदान पर। मैदान में जब हम एंट्री मारते हैं तो दाहिनी और श्रीकार स्टैंड, वहां से आगे गुजर कर जब आते हैं तो आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड, और ये दृश्य है आशा पाटिल गैलरी का जो मैदान में अंदर आते ही बाईं ओर स्थित है। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड और आशा पाटिल गैलरी ये 35 दिनों के विक्रमी समय के अंदर बांधे गए हैं। संदीप नायक नए ओवर की शुरुआत करते हुए, पहली बॉल बल्ले के अंदर के किनारे से लगकर फाइन लेग पर जाती हुई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रेक्षकों ने एक अच्छे मुकाबले की यहां पर अपेक्षा की थी लेकिन सचिन 11 के ऊपर पहली बॉल से हुकूमत कायम रही और यहां पर अब एक और साहसी शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। पूल ए के बॉटम हाफ का ये मैच चल रहा है और इसी बॉटम हाफ में जय दुर्गा जैसी टीम है, न्यू नेताजी जैसी टीम है और वाकई में पूल ए के बॉटम हाफ से सेमीफाइनल में कौन सी टीम आएगी ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्वयं नॉस्ट्राडेमस खुद इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि पूल ए के बॉटम हाफ से कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा इस चैलेंज कप 2002 में। संदीप नायक की अगली बॉल, विकेट के नीचे उतरकर ड्राइव किया बैट्समैन सुभाष ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, 64 रन और चाहिए। 8 ओवर की गागर में 90 रनों का महासागर भरते हुए संदीप नाइक
जो इस वक्त 1000 रुपए कुल मिलाकर जीत चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली बॉल। एक बार फिर से ताकत का इस्तेमाल, लेकिन केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, शक्ति और युक्ति ये दोनों का मिश्रण होना चाहिए। लेकिन बॉलरों ने इतने रन खर्च कर दिए हैं कि बल्लेबाजों के कंधे और उनका बल्ला भी जवाब दे चुका है। चौके और छक्के के जो स्ट्रोक्स हैं, मानो उसके ऊपर गोदरेज का 9 लीवर का ताला मार दिया गया हो, रन नहीं बन पा रहे हैं। हार्ड टाइम फॉर सचिन 11। जय बजरंग 11 ने बहुत अच्छी शुरुआत की। अट्ठाईस रन 3 विकेट के नुकसान पर, 63 रन और चाहिए। संदीप नाइक हमसे दूर जाते हुए, अगली बॉल। ओवर पिच लेंथ की ड्राइव किया था, अब यहां पर ग्राउंड शॉट लग रहे हैं जब आसमानी शॉट्स की आवश्यकता है, और बल्लेबाज के ड्राइविंग लेंथ से बॉल को थोड़ा शॉर्ट रखा जा रहा है। एक बार फिर से इस बार चेंज ऑफ पेस कराने की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। अब जय बजरंग की विजय करीब करीब निश्चित हो गई है। तो कल शाम के 5:30 बजे अगले पड़ाव पर उन्हें एक और सुपर डुपर टीम का मुकाबला करना है, और वो टीम का नाम है न्यू नेताजी। यानी कि कल न्यू नेताजी और जय बजरंग, ये दो टीमों को आप एक्शन में देखेंगे शाम के 5:30 बजे। इस बार एक आसमानी टोला और आउट। बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, कैच लेना ये इतना आसान उन्होंने कर दिखाया, रन बनाना कितना आसान है ये उन्होंने कर दिखाया। जय बजरंग वाकई में अ टीम विथ सॉलिडारिटी, टीम विथ अ गोल, टीम ऑन मिशन टू विन चैलेंज प्रेसिडेंट कप 2002। बहुत अच्छी शुरुआत। आउट होकर वापस लौटते हुए बैट्समैन विनोद, और उनकी जगह लेने आ रहे हैं नए बैट्समैन रमेश। जबकि मेरे मित्र संतोष चौहान बता रहे हैं कि इस वर्ष कुल मिलाकर अब तक 4 टूर्नामेंट इस मैदान पर खेले गए, और चारों टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल तक ये टीम पहुंची। तो जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है, और इसमें से एक बार उनको अंतिम मैच भी खेलने का मौका मिला था, और वहां चैलेंज के सामने उनको दम तोड़ना पड़ा था। सो आई थिंक इट इज अ गुड इंप्रूवमेंट, और पिछली गलतियों को ढककर आने वाले मैचेस में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए ये इस टीम ने सीखा हुआ है। कंसिस्टेंसी इज द की। आज के कंटेम्पररी क्रिकेट में सातत्यता का अभाव बहुत सारी टीमों में होता है, लेकिन जय बजरंग ने इस वर्ष अपनी सातत्यता कायम रखी है, और शायद किसे पता है इस साल वे सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच सकते हैं। इस बार विकेट के नीचे उतरकर एक और लंबा शॉट, और विकेट यहां पर। कैचेस विंस द मैचेस। पहले 90 रन, फिर नपीतुली गेंदबाजी, विकेट टू विकेट बॉलिंग, और अब बढ़िया क्षेत्ररक्षण। कामयाब होने के जो 3 लक्षण होते हैं, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया क्षेत्ररक्षण, ये तीनों इस टीम में मौजूद हैं। जय बजरंग वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई न्यू नेताजी, जय दुर्गा अन्य टीमों को चुनौती है इस पूल ए के बॉटम हाफ में जय बजरंग द्वारा। कुल मिलाकर स्कोर 30 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। छह ओवर की समाप्ति पर 30 रन। अब नया ओवर लेकर तैयार सुजीत, जिन्होंने अपने पहली बॉल पर विकेट लिया। आखिरी 11 बॉल में मैच जीतने के लिए 61 रन चाहिए, यानी हर बॉल पर सिक्सर्स। इस बार एक और डॉट बॉल। अब आखिरी 10 बॉल में 61 रनों की आवश्यकता, और किस वक्त ये पॉसिबिलिटी 9 बॉल 61 रन हो जाएगी या 9 बॉल 60 रन, आशाएं समाप्त हो जाएगी सचिन 11 के लिए। यानी अब 9 बॉल में 61 रन, 9 balls and 61 runs।
जय बजरंग टीम को अभिनंदन। केवल अब औपचारिकताएं बाकी इस मैच में। इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड थोड़े समय में दिया जाएगा। इस बार इनसाइड आउट खेला था, स्क्वायर ड्राइव, बॉल जमीन के सहारे सरकती हुई, 1 रन बैट्समैन महेश के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। 60 रन चाहिए आखिरी 8 बॉल में, 8 बॉल 60 रन। झंडा लहराता हुआ जय बजरंग टीम का। जगह पर से खड़े रहकर ड्राइव, 1 रन और। केवल औपचारिकताएं सचिन 11 के लिए। यह मैच काफी निराशाजनक रहा। आत्मचिंतन की आवश्यकता। पिछले 2 साल से उनके लिए चैलेंज का पच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन 2003 के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हुए (33 रन) अब आखिरी 6 बॉल में मैच जीतने के लिए 58 रनों की आवश्यकता है। 6 balls and 58 runs। जय बजरंग 11 की टीम कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल और अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, क्रिकेट के सबक को बहुत अच्छी तरह सीखने वाली ये टीम है। अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट ऐसे 7 अल्फाबेट से बना हुआ शब्द है, CRICKET। C फॉर कंसंट्रेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, I फॉर इंटेलिजेंस, C फॉर कंट्रोल, K फॉर नॉलेज, T फॉर एनर्जी और T फॉर टेम्परामेंट। ये सारी चीजें इस जय बजरंग टीम में मौजूद है और इसीलिए आज उन्होंने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की सचिन 11 के सामने। और वाकई उसमें जो आखिरी अल्फाबेट है, T फॉर टेम्परामेंट, ये बहुत बड़ी बात है। राइजिंग टू द ओकेजन, बहुत अच्छा क्रिकेट। बिल्कुल ये उन्होंने सामने वाली टीम को डोमिनेट नहीं करने दिया। मैच में एक भी ओवर ऐसा नहीं था जब जय बजरंग के ऊपर सचिन 11 हावी हुई हो, या तो उनकी बल्लेबाजी चल रही हो या उनकी गेंदबाजी चल रही हो। तो दैट वाज अ सुपर डुपर क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट, भिवंडी स्टाइल ऑफ क्रिकेट बाय जय बजरंग। आखिरी 4 बॉल का खेल शेष। अब इस मैच में केवल औपचारिकताएं बची हुई है और अभी भी चौका लग नहीं पा रहा है। चौके की तो दूर प्रवीण पिडिया, यहाँ पर 2 रन के स्कोरिंग शॉट हमने केवल 2 देखे। नाउ दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। बहुत अच्छी फील्डिंग, ड्राइविंग लाइन से बॉल को थोड़ा शॉर्ट रखना, पिच बॉल बिल्कुल नहीं देखने को मिली। हालांकि हमने 5 वाइड बॉल जरूर देखे हैं, बट ओवरऑल क्वालिटी क्रिकेट, श्रीकार क्रिकेट जिसे हम कहते हैं भिवंडी की भाषा में, दे हैव प्लेड श्रीकार क्रिकेट। अगले पड़ाव पर कल शाम के 5:30 बजे जय बजरंग का मुकाबला न्यू नेताजी से। अगर आप जय बजरंग टीम के फैन हैं तो शाम के 5:30 बजे आना मत भूलिएगा, जहां उनका मुकाबला होने जा रहा है न्यू नेताजी से। इस मैच का मैन ऑफ मैच पुरस्कार मैच की समाप्ति के तुरंत बाद भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहायक आयुक्त के अच्युत आंडे साहब, इनके हाथों दिया जाएगा। और ये खिलाड़ी कौन होगा, इसलिए टूर्नामेंट की सबसे बड़ी विजय और इस विजय के शुरुआत मैन ऑफ का नाम है संदीप नाइक, जिसको मैन ऑफ मैच किया जा रहा है। अभिनंदन संदीप नाइक। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में